میں چائے پینے جا رہا ہوں، اس نے کہا۔ ہیں، ابھی تو آئے ہو؟ میں نے کچھ نہیں کھایا۔ فٹر نے شاید پہلی دفعہ اسے غور سے دیکھا اور چونک پڑا۔ علی، اس نے آہستہ سے اسے کندھے پر چھوا۔ کیا بات ہے؟ مجھے بھوک لگی ہے۔ تم رات کو سوئے نہیں؟ مجھے بھوک لگی ہے، علی نے دہرایا۔ جاؤ۔ اس نے دوبارہ اضطراب سے علی کے کندھے کو چھوا۔ آرام کرو، جاؤ۔ باہر نکلتے ہی اس کی بھوک غائب ہو گئی۔ میدان میں دھوپ کا رنگ پھیکا پڑ رہا تھا اور اندر سے اٹھنے والے شور کے باوجود باہر گرما کی دوپہر کا سناٹا اور جمود قائم تھا۔ لوہے کی پائپوں اور بند مشینریوں کے کریٹوں کے پاس سے گزر کر وہ کینٹین کی سیڑھیاں چڑھا۔ ایک چائے دو، اس نے کنکریٹ کے کاؤنٹر پر جھک کر کہا۔ بیٹھ جاؤ علی، بڑی گرمی پڑ رہی ہے، کینٹین والے ادھیڑ عمر کمزور شخص نے کہا۔ ہاں، وہ بینچ پر بیٹھ گیا۔ کیسا چل رہا ہے؟ ٹھیک چل رہا ہے، علی نے چائے کی سرخی لی۔ اتنے سال ہو گئے، کینٹین والے نے مایوسی سے کہا۔ کب تک چلے گا؟ کیا فیکٹری بن ہی نہیں پاتی؟ گرمی سے گھبرائی ہوئی چند چڑیاں کمرے میں چکر لگا رہی تھیں۔ وہ پھر بولا، تمہارے کوئی بچہ ہے؟ علی نے نفی میں سر ہلایا۔ کئے سال ہوئے؟ پتہ نہیں۔ پتہ نہیں؟ ادھیڑ عمر کا کمزور شخص منہ کھول کر ہنسا۔ علی نے سرخ سرخ آنکھیں نکال کر اسے دیکھا اور چائے کا آخری گھونٹ حلق میں اتار کر باہر نکل آیا۔ یہ گنوار لوگ جو بھوکے مرتے ہوئے کام کی تلاش میں آتے ہیں، کینٹین والے نے علی کے پیچھے دیکھتے ہوئے ایک اور گاہک سے کہنا شروع کیا۔ لوہے کے پائپوں اور مشینری کے کریٹوں کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے کان میں دور سے خلاصیوں کے گروہ کی دھیمی آوازیں آنی شروع ہوئیں۔ ہائی سا، ہائی سا، ہائی سا۔ بے دلی سے قدم رکھتا ہوا وہ اپنے چبوترے کے پاس آ کھڑا ہوا۔ زیادہ تر لوگ کام چھوڑ کر چبوتروں کے پیچھے چھپ کر بیٹھے ہوئے گپے مار رہے تھے۔ استاد دوسری لائن کے فٹر کے پاس بیٹھا چھوٹا سا جیبی حقہ پی رہا تھا۔ چند ایک محض آواز پیدا کرنے کو دھات سے دھات ٹکرا رہے تھے اور باتیں کرتے جا رہے تھے۔ خلاصیوں کا گروہ ایک بھاری موٹر کو رستے سے باندھ کر اندر لا رہا تھا۔ ہائی سا، ہائی سا، بولی دینے والے کی آواز خواب آلود تھی۔ پھر خلاصیوں کی آوازیں اچانک تیز ہو گئیں۔ دونوں فٹر گھبرا کر اٹھے اور حقہ جیب میں ڈال کر قطاروں کے بیچ دوڑنے لگے۔ مزدور اور کاریگر اپنے اپنے اوزاروں کی طرف لپکے۔ کام کا شور ایک دم بڑھ گیا۔ دروازے میں سے سرخ چہرے والا بڈھا انگریز چیف انجینئر داخل ہوا۔ وہ ہر وقت آگ بگولا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹھگنا فورمین تھا۔ چھوٹا سا گنجا سر سانپ کی طرح تیزی سے چاروں طرف گھما کر چلتا ہوا وہ اندر آیا۔ ہے کر کے فٹروں کو پاس بلایا اور ہال کے وسط میں رک کر کام کا جائزہ لینے لگا۔ پھر فورمین کو مخاطب کر کے اس نے فٹروں کے سروں کے اوپر بازو چلائے اور نامکمل کام کی طرف اشارہ کر کے 5 منٹ تک تیز خشک آواز میں چیختا اور غصے سے ناچتا رہا۔ موٹروں کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے ایک لڑکے کے چوتڑوں پر بوٹ کی ٹھوک ماری اور چیخا، ہے جلدی کرو۔ لڑکے نے چبوترے کا سہارا لے کر آہستہ سے گالی دی۔ علی بازو لٹکائے اپنی جگہ پر کھڑا رہا حتیٰ کہ بڈھا انگریز اسی طرح چیختا ہوا اس کے پاس سے گزر گیا۔ اس نے خاموشی سے دانت پیسے۔ کچھ دیر تک کام تیزی سے ہوتا رہا۔ پھر نوجوان انجینئر مجید داخل ہوا۔ اس کا قد لمبا اور رنگ سانولا تھا۔ انگریزی لہجے میں ہے کر کے اس نے فٹروں کو بلایا۔ چند منٹ تک بازوؤں کو تیزی سے ہوا میں حرکت دیتا اور چیختا رہا۔ پھر کوہنیاں باہر نکال کر چلتا ہوا نکل گیا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی اطمینان بخش فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ کچھ دیر کے بعد دونوں فٹر پھر حقہ پی رہے تھے اور لونڈے چبوتروں کے پیچھے چھپے گپے مار رہے تھے۔ اوزاروں کو وہیں چھوڑ کر علی باہر نکل آیا۔ معدے کی جلن کی جگہ اب ایک دھیمی مستقل شدید بے دلی اور بدمزگی نے لے لی تھی۔ ایک ایسی کیفیت جو آسانی سے سہاری نہ جا سکنے کے علاوہ آسانی سے بیان بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ میدان کو پار کرتے ہوئے اسے ایک عجیب و غریب خیال آیا کہ جیسے وہ اکھڑے ہوئے نوجوان درختوں کے سائے میں سستا رہا ہے اور درخت روز بروز خشک ہوتے جا رہے ہیں۔ دھوپ میں سر جھکا کر وہ اکیلا چلتا رہا۔ دوپہر زرد پڑ چکی تھی لیکن آسمان ابھی گرم اور مٹیالہ تھا۔ چیلیں اوپر چلی گئی تھی اور دور سے ان کی چیخوں کی آواز دوپہر کے آخری سناٹے کو سنسان بنا رہی تھی۔ کوے جو درختوں اور دیواروں کے پرند ہیں سائے میں پانی کی ٹوٹیوں کے گرد چوکس بیٹھے تھے، جبکہ علی کڑی مستقل چال سے ان کے قریب سے گزرتا رہا۔
कहीं कहीं बच्चे जिनके वालिदैन मसरूफ और लापरवाह थे, कौओं की तरह दीवारों के साए में बैठे आहिस्ता आहिस्ता खेल रहे थे। कभी कभी कोई बच्चा इस अकेले जाते हुए शख्स को पहचान कर उंगली से इशारा करता, वो अली है, और फिर खेलने लगता। दरवाजे और खिड़कियां बंद करके आयशा सो रही थी। उसके गाल और छातियां पसीने से तर थीं और जरा से खुले हुए मुंह में से खर्राटों की आवाज आ रही थी। अली दरवाजे में खड़ा आशना लाताल्लुक नजरों से उसको देखता रहा। फिर उसने जोर से दरवाजा बंद किया। आयशा जाग उठी। आज तुम दोपहर को नहीं आए? वो आंखें मलती हुई उठ खड़ी हुई। वो छरेरे बदन की लंबी सी लड़की थी जिसका रंग गंदुमी और जिल्द सेहतमंद थी। मैं बैठी इंतजार करती रही, फिर पता नहीं कब सो गई। बड़ी गर्मी लग रही थी। तुमने खाना खा लिया? सब तो आए थे, आज तुमको बड़ा काम था। मैंने रहीम से पूछा तो उसने कहा कि उसने तुम्हें इधर आते देखा था। फिर तुम कहाँ चले गए? एक मुर्गी को कालू उठाकर ले गया है। कालू का बच्चा, बिल्ला। तुम उसे मार क्यों नहीं देते? पता है इन गर्मियों में हमने एक बिल्ला मारा था, गांव में, जब रोशन आगा के कुत्ते। मुझे खाना दो, अली ने झल्ला कर कहा। वो बातें करती हुई कमरे से निकल गई। तुम नहा लो तो अच्छा है, खाकर नहाओगे तो गर्म सर्द हो जाओगे। खाना तो मैंने तैयार कर दिया था। जब एक पहर दिन, आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज भुनभुनाहट में तब्दील हो गई। अली खाली खाली नजरों से दीवारों को देखता हुआ चारपाई पर बैठा रहा। जब वो खाना ले आई तो उसने पांव ऊपर खींचकर टांगे समेटी और खाने लगा। मक्खियां टिड्डी की तरह आती हैं, आयशा मक्खियां उड़ाते हुए बोली। टिड्डी यहाँ कभी नहीं देखी। शादी से पहले साल जब मैं रोशनपुर आई थी तो कितनी टिड्डी आई थी। गांव की सारी लड़कियां टिड्डी पकड़ने को निकल आई थी और सारे मर्द फसलों में घुसकर शोर मचा रहे थे। और हमें देखकर तुम खेत से निकल आए थे और तुमने मुझसे कहा था, टिड्डी मत खाना, औरतों के लिए अच्छी नहीं होती, बस मर्द के लिए अच्छी होती है। उस वक्त मैं रावल की मांग थी। उसने हमें बातें करते हुए देख लिया था। रावल आजकल कहाँ है? आज बारिश आएगी, आसमान तप रहा है, और चीलों की आवाज तुमने सुनी है? पानी मांग रही हैं। दूर ऊपर वो देखो, आज करेले अच्छे नहीं हैं, आज पुदीना नहीं था। रहीम के बेटे के पेट में मरोड़ उठा था, वो सारा तोड़कर ले गए। तुमने ही कहा था रहीम के घर से जो कुछ मांगे दे दिया करो। आज मक्खियां भी ज्यादा हैं। सवेरे कुछ लोग आए थे जो मस्जिद के लिए चंदा जमा कर रहे थे। मैंने अंदर से कुंडी लगाकर मक्र कर लिया। अली ने खाना खाते हुए दिल में उसे गंदी सी गाली दी। देर तक वो दरवाजा तोड़ते रहे, फिर चले गए। हम कोई मस्जिद में जाते हैं जो चंदा दें? कालू के पीछे मैं भागी थी मगर वो तेज निकला। मैं कितना तेज भागती थी तुम्हें याद है? मेरा जी गांव जाने को करता है। यहाँ पर चिड़िया नहीं होती हैं। अली को भूख न थी मगर खाया जा रहा था। हर एक निवाले को चबाकर बारीक लुआब बनाकर निगल रहा था। जब उसने पानी पीकर बर्तन आयशा को पकड़ाए तो भी वो बातें कर रही थी। वो एक बेतमीज किसान लड़की थी जिसकी जिंदगी की वाहिद ख्वाहिश अपने मर्द को खुश करना थी। इस कवी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसे बातें करने के सिवा कुछ न आता था। जब वो दोबारा कमरे में दाखिल हुई तो अली चारपाई पर लेटा छत को तक रहा था। वो फिर बातें करने लगी। दरवाजा बंद कर दे, ये रोशनी। अली ने आंखों पर हाथ रखा। बोलते बोलते उसने दरवाजा बंद किया। बकबक बंद कर, इधर आ, अली ने कहा। वो गंवार औरतों की तरह आकर उसके पास बेसुध लेट गई। अली उसकी लंबी गोल रान पर हाथ रखे लेटा रहा, इंतजार करता रहा। फिर यकायक अंधेरे में हंसा और उस पर झुक गया। हंसी की आवाज मसनूई और खोखली थी। बाद में वो देर तक बेदम लेटा हुआ छत को घूरता रहा और गुनूदगी आहिस्ता आहिस्ता उस पर तारी होती गई। उसके आसाब पुरसुकून थे लेकिन रूह की सोजिश दब जाने के बावजूद कायम थी। आज का दिन तेज जलन का दिन था। ऐसे दिन लंबे लंबे वक्फों पर आया करते थे। हे लड़कों, लड़कियां हैं, फिटर अहमद ने दरवाजे में रुककर कहा। फिर वो मुड़ा और एक आंख भींचकर मुस्कुराया। कुछ लड़कियां हैं, उसने दोबारा कहा। सारे स्पिनिंग रूम में एक खामोश इस्तराब फैल गया। बेजार चेहरों पर रंग आ गया और मुश्ताक नजरें दरवाजे पर लग गईं। बाहर फैक्ट्री की फिजा हमेशा की तरह बेमौसम और गर्द आलूद थी। एक मजदूर औजार बजाता हुआ तेज तेज मैदान पार कर रहा था। अंदर कतार दर कतार चलते हुए तकलों पर खड़े हुए मजदूरों में यह खबर आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी। फजल ने हिम्मत करके अपना तकला छोड़ा और दरवाजे में जाकर सर बाहर निकाला। फैक्ट्री की गर्द आलूद फिजा साफ हो गई थी और उसमें मौसम के रंग निखर आए थे। शोख रंगों के ऊनी लिबादे
और शालें ओढ़े तालिब इल्म लड़कियों का गिरोह लापरवाही से चलता हुआ स्पिनिंग रूम की तरफ आ रहा था। सरमा की तेज हवा में उनके लिबादे उड़ रहे थे और सर पर बंधे हुए रंगीन रुमालों में से निकली हुई घने सियाह बालों की लटें उनके माथों पर खड़खड़ा रही थी। वो सब नौउम्र सेहतमंद लड़कियां थीं और खिलखिलाकर हंस रही थीं। चंद लम्हे तक वो दोनों दरवाजे में खड़े खुशगवार तहय्युर के साथ उन्हें देखते रहे, फिर जल्दी से हट आए। वापसी पर फजल अली के पास रुका। उसके एक जोरदार धप से अली उछलकर सीधा हो गया। क्या है? उसने गाली देकर कहा। लड़कियां आई हैं। हुँ। फजल मक्कारी से हंसता और उसके कंधे पर हाथ मारता हुआ आगे चला गया। अली ने दोबारा गाली दी। उनके साथ एक नौजवान इंजीनियर जिसने लिबास में गैर मामूली एहतमाम कर रखा था, बेहद अखलाक के साथ आगे आगे चल रहा था। ग्रुप के आखिर में दो लड़कियां नौजवान की चाल ढाल की नकल उतार रही थी। ये तकले हैं, यहाँ कपड़ा बुना जाता है। चरखे? हाँ, मशीनी चरखे। इंजीनियर ने फख्र से मुस्कुराकर कहा। चरखा? शरारती लड़कियों में से एक ने इंजीनियर की तरफ इशारा करके अपनी साथी से कहा। मशीनी चरखा, दूसरी ने जेरे लब दोहराया और होंठ दबाकर हंसी। ये क्या है? और इंजीनियर ने झपट कर बड़ी लड़की की शाल तकले में से छुड़ा ली। वो लड़की जो ग्रुप की लेडी मालूम होती थी और संजीदगी से इंजीनियर के साथ साथ चलती हुई सब चीजें देख रही थी, अब हवास बाख्ता खड़ी फटी हुई शाल को हाथ में मरोड़ रही थी। मुहर्रिक मशीनरी। इंजीनियर तंबीहन हाथ हवा में हिलाकर पुकारा। मुहर्रिक मशीनरी के नजदीक कोई मत जाए। ये इंतहाई खतरनाक है और अपने अपने लिबादों को ढीला मत छोड़िए। ये इंतहाई खतरनाक है और ये इंतहाई खतरनाक है। बहरहाल। उफ अल्लाह, कितना शोर है, एक लड़की ने कानों पर हाथ रखकर कहा। चरखे के नजदीक मत जाओ, पहली शरारती लड़की ने कहा। चरखे को हाथ मत लगाओ, दूसरी शरारती लड़की ने कहा। मशीनरी के शोर में उनकी आवाज ज्यादा दूर तक न जा सकी। दो रुया मुतहय्यर और सादा झिझक भरी नजरों से देखते हुए मजदूरों के बीच बीच ये खूबसूरत मजमा आगे बढ़ता गया। ए ए एक मजदूर के पास रुककर इंजीनियर मसनूई गुस्से से चिल्लाया। टकला उधर नहीं इधर है। मजदूर खिसियाना होकर मशीन को घूरने लगा। चरखा उधर नहीं इधर है, दोनों शरारती लड़कियों ने कहा। मुस्तकिल बातें करता और नेकटाई को छूता हुआ नौजवान इंजीनियर गिरोह के आगे आगे बाहर निकल गया। मजदूरों में आहिस्ता आहिस्ता इस्तिराब फैलने लगा। पहले वो अपनी अपनी जगहों पर पैर घसीटते रहे, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू हुए। फिर फिटर, फिर नायब फिटर, फिर तकलों वाले छोटे से दरवाजे पर 10-12 सर इकट्ठे हो गए और एक दूसरे को धकेलने लगे। अब सारा तहय्युर मिट चुका था और मसरूर कुव्वतें बेदार हो रही थी। वो वहशियाना तौर पर हंस रहे थे, बेधड़क गालियां दे रहे थे और एक दूसरे की बगलों में सर देकर उछालने की कोशिश कर रहे थे। खिलखिलाकर हंसती हुई लड़कियों का गिरोह आहिस्ता आहिस्ता मैदान पार कर रहा था। तेज सर्द हवा में उनके चेहरे सुर्ख हो रहे थे और उन्होंने अपने लिबादे कसकर लपेट रखे थे, जिनमें से उनके सेहतमंद जिस्मों का एक एक उज्व मुतहर्रिक दिखाई दे रहा था। रुई के कमरे, सफाई के कमरे और खुड्डियों के कमरे के दरवाजे इंसानी सरों से खचाखच भरे हुए थे। छोटा सा गंजा फोरमैन अकबी दरवाजे से दाखिल हुआ और बहुत सी मशीनों को खाली पाकर सीखपा हो गया। भागता हुआ दूसरे दरवाजे पर पहुंचा और पिछले दो मजदूरों के कंधों पर हाथ रखकर उछला। क्या है? क्या है? क्या हो रहा है? वो गरजा। पहले दो मजदूर तेजी से अपनी अपनी जगह पर वापस पहुंच गए। अगले दोनों की पुश्त पर हाथ रखकर फोरमैन ने दोबारा ऊंची छलांग लगाई और जमीन पर आ रहा। सुअरों, ये क्या हो रहा है? मशीनों को क्यों छोड़ा है? ये क्या तमाशा हो रहा है? मजदूर खिसियाकर वहां से खिसकने लगे। फोरमैन उनके दरमियान उछलता रहा। जब फिटर उसकी नजर बचाकर गुजरने लगा तो उसने उसे कॉलर से पकड़ लिया और उंगली हिला हिलाकर मलामत करने लगा। फिटर अहमकों की तरह हंसता रहा। जब फोरमैन चला गया तो मशीनों पर खड़े हुए इंसानों की शोखी फिर ऊपर आ गई। सीधा उनके पीछे जा रहा है, गंजा सुअर, एक मजदूर ने कहा। अली ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। जाओ, अपनी जगह पर जाओ, फिटर उनके करीब आकर चीखा। अब उनको पकाकर खाना चाहते हो? दोनों बुजदिली से हंसते हुए वापस आ गए। फिटर जाकर दरवाजे में खड़ा हो गया। उसे नाचते हुए देखा था, गंजे मस्खरे को। हाँ, अली हंसा। मेरे कंधे तक भी ना पहुंचता था। गंजे बौने को? फजल ने ठट्टा मारकर पूछा। वो और उसका बाप ऊपर तले खड़े हो जाएं तो पार कर जाऊं। चुप रहे शेखी खोरे, पहला मजदूर जलकर बोला। हैं? फजल ललकारा। तुम खड़े घोड़े को पार कर सकते हो? हूं, दूसरे ने हिकारत से कहा। ना होगा घोड़ा, न तुम करोगे पार, तो आ जाओ।
फजल ने चारों तरफ दीवारों पर ऊंची ऊंची नजरें घुमाई। इस पर, इस पर। उसने एक ऊंची खिड़की की तरफ इशारा किया। आ जाओ। दोनों ने हंसते और गालियां देते हुए लंगोट कसने शुरू कर दिए। साथ साथ वो दरवाजे से बाहर भी देखते जा रहे थे। मैदान के दूसरे सिरे वाले हॉल की खिड़कियों में से तालिब इल्मों के सर नजर आ रहे थे। चलो, एक ने कहा। पहले तुम जाओ, दूसरे ने जवाब दिया। फजल ने एक छिछलती हुई निगाह बाहर की तरफ दौड़ाई और तेजी से भागा। जब दीवार चंद कदम पर रह गई तो उसने रफ्तार तेज कर दी और दीवार पर पांव मारकर उछला और खिड़की पर हाथ टिका दिए। अब वो बाजुओं के सहारे लटक रहा था। शाबाश। खिड़की के करीब की मशीन वाला रान पर मुक्का मारकर चिल्लाया। फजल बाजुओं के जोर पर आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू हुआ। जरा सा उठकर रुका और नीचे आ गया। चंद सेकंड के बाद फिर उठा और नाकाम रहा। इस दफा वो पहले से ज्यादा उठ गया था और ज्यादा देर तक रुका रहा था। नीचे खड़े हुए मजदूर जोश से चिल्लाए। तीसरी दफा उसने दांत पीसकर जोर लगाया और उसकी ठोड़ी खिड़की के जीने तक पहुंच गई। वो रुका रहा। उसके दांत नंगे होकर एक दूसरे पर जमे हुए थे और कंधे बुरी तरह कपकपा रहे थे। उसने घुटने और पांव चलाए, लेकिन दीवार सीधी और हमवार थी और उस पर कोई सहारा न था। एक आखिरी कोशिश में उसने हाथ उठाकर सलाखों को पकड़ना चाहा, मगर दूसरा हाथ बोझ को न संभाल सका और फिसल गया। उसकी ठोड़ी खिड़की के पत्थर से टकराई और वो धड़ाम से नीचे आ गिरा। नीचे वाले मजमे में से मायूसी की कराह बुलंद हुई। थोड़ी देर के बाद वो उठा और लंगड़ाता हुआ दीवार के साथ साथ चलने लगा। उसका इंतजार किए बगैर दूसरा मजदूर पूरी कुव्वत से भागा और दीवार पर पांव मारकर बहुत ऊंचा उछला। पहली ही कोशिश में उसने मजबूती से हाथ सलाखों पर जमा लिए, लेकिन उसके बाजू कमजोर थे। दो एक बार खफीफ सा ऊपर उठने के बाद उसने हाथ छोड़ दिए और बिल्ली की तरह पांव पर गिरा। मजदूर जो अब खिड़की के नीचे इकट्ठे हो गए थे, ठट्टा मारकर हंसे। नाकाम छलांगिये ने ढट्टाई से उन्हें गाली दी और बिला वजह हंसने लगा। फिटर, जो मजमे के सर पर आ गया था, पहले तो भिन्नाया, फिर मजदूरों का जोशो खरोश देखकर ठंडा पड़ गया और उनमें दिलचस्पी लेने लगा। दो तीन और जवान फलांगने के लिए तैयार हो रहे थे। एक एक करके फिटर पुकारा। मशीनों को खाली मत छोड़ो। जो छलांग लगाएगा उसकी मशीन का दूसरा ध्यान रखेगा। एक एक करके सब जवां मर्दों ने छलांग लगानी शुरू की। काफी देर तक वो जोर आजमाई करते रहे, मगर दीवार सर्द और अटूट थी। उसने सारे नौजवानों के गुरूर को मजरूह कर दिया। दांत पीस पीस कर, पट्टे खींच खींच कर और रगे फुला फुला कर उन्होंने अपनी सारी कुव्वतें सर्फ कर दी। एक मस्खरा मजदूर देर तक जो सलाखों से लटका रहा, तो उसके हाथ वहीं पर जकड़े गए और उसको नीम बेहोशी की हालत में सीढ़ी की मदद से नीचे उतारा गया। उसके बाद सबने एक दूसरे को गालियां देते हुए ये खेल बंद कर दिया। एक घंटे के बाद हालात मामूल पर आ गए। सब मजदूर अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए मशीनों की यकसा बेजार कर देने वाली आवाज को सुन रहे थे। बाहर फैक्ट्री की फिजा बेमौसम और गर्द आलूद थी और हवा का जोर टूट चुका था। ऊपर की मंजिल से जो चूबी जीना बरामदे में उतरता था, मुसलसल इस्तेमाल की वजह से घिस चुका था, मगर उसकी लकड़ी सियाह, ठोस और उम्दा थी। नजमी ने बरामदे में उतरते ही नाक उठाकर सूंघा। हवा में बारिश और गीले पत्तों की महक थी। उसने खुशी से कपड़ों पर हाथ फेरा और पांचे उठाकर एहतियात से चलने लगी। बरामदे का फर्श गीला और फिसलवां था। अंदर से खाला ने उसे देखा और पुकारी, बीबी, नंगे पांव। उसने चोटों की तरह गर्दन कंधों में छुपा ली और दीवार की ओट में होकर चलने लगी। बरामदा खाली और तवील था और भीगी हुई चिड़िया बेलों में बैठी पर झटक रही थी। उसने पांचे छोड़ दिए। ढीले ढाले पाजामे में उसके पांव और पांचे गीले होने लगे। बरामदे के वुस्त में चंद लहजे को रुककर उसने बेमुद्दा इत्मीनान के साथ आसपास की बेरंगी और बेजार कर देने वाले मौसम को देखा। फिर उसने पांचे उठा लिए। उसके पांव जर्दी माइल और दुबले थे। चलते चलते उसने एक पांव पलटकर देखा। तलवा गुलाबी और धुला हुआ था और उसमें फर्श की नमदार खुशगवार ठंडक जज्ब हो रही थी। बरामदे के मोड़ तक पहुंचते पहुंचते उसने फिर पांचे छोड़ दिए और बाहें हिलाती हुई लापरवाही से चलने लगी। अगले बाजू में बहुत सी ऊट पटांग चीजें बिखरी पड़ी थी। वो पिंग पोंग की मेज के कोने पर बैठकर टांगे हिलाने लगी। दूसरे कोने में इमरान दीवार से टेक लगाए उकड़ू बैठा था। उसने एक सरसरी सुस्त निगाह अपनी नौउम्र फुफी पर डाली और बाहर देखने लगा। वो काफी देर तक खामोश बैठी पांव हिलाती रही, फिर मुड़कर शगुफ्तगी से बोली, हेलो मास्टर डल। इमरान ने ठहरी हुई काहिल नजरों से
जिनसे हिमाकत और ला इल्मी का इजहार होता था, उसे देखा। मौसम ने सारा मजा खराब कर दिया। वो फिर बोली। हाँ, इमरान ने सर हिलाया। वो एक सुस्त दिमाग और भीगी भीगी उदास आंखों वाला नौजवान लड़का था, जिसके चेहरे पर कोई तासुर शाज ही पैदा होता था। नजमी बेजारी के बावजूद उसी तरह बैठी शगुफ्तगी से टांगे हिलाती और फर्श पर बिखरी हुई चीजों को देखती रही। बारिश लगातार हो रही थी। एक भटकी हुई जर्द तितली बरामदे में से गुजरी, जर्द गुलाब की पंखड़ी। वो बोली, तुमने वो नज्म सुनी है जो मैंने जाड़ों में लिखी थी? इमरान ने अपनी लाइल्म नजरों से देखा। जाड़ों में? ओ हाँ, जाड़ों में। सारी चिड़ियां भीग गई हैं, तितलियां गायब हो गई हैं, बरसात आ गई है। वो गाती हुई बोली। तितलियां जाड़ों में होती हैं, इमरान ने बेहद अहम लहजे में, जैसे कि वो हर मामूली बात को अदा किया करता था, उसने कहा। जब दिन में बाहर बैठते हैं और धूप में ऐसी चमक होती है और हर तरफ तितलियां उड़ती फिरती हैं, रंग बिरंग और शहद की मक्खियां, रंग बिरंग और तार, है नहीं? ओह, उसने मुट्ठियां कसकर छाती में भींच ली और आंखें मीच कर हंसी। है नहीं? मैंने परवेज भाई को सुनाई थी। जर्द गुलाब की पंखड़ी। उसने पांव फैलाकर बारिश की फुहार को महसूस किया और गुनगुनाई। गुलाब जो खिजा की बारिश में फूलता है। पापा अभी तक नहीं आए, नौजवान लड़के ने बच्चों की तरह भीगी भीगी उदास आंखें उठाकर कहा। परवेज भाई कभी नहीं आते। पिछली बार भी आधी रात को पहुंचे थे, आज भी नहीं आए। उन्होंने तोहफा तो दिया ही था। तोहफों का क्या है? वो रंज से चीख कर बोली। इमरान शशदर बैठा उसकी आंखों में आंसुओं को जमा होते हुए देखता रहा। वो पांव लटकाए, दोनों हाथ गोद में रखे, खामोश बैठी बारिश के शोर को सुनती रही। आसपास गहरा सुकूत था, बेरंग बारिश आलूद सपहर का सुकूत, जिसमें गीली चिड़ियां बरामदे की बेल में छुपी सुस्त मुख्तसर आवाजों में बातें कर रही थीं, और बादल बहुत नीचे झुकाए थे और यूकेलिप्टस की चोटियों में फिर रहे थे। यह बरसात की पहली बारिश थी जिसने आज नजमी की सालगिरह का सत्यानाश कर दिया था। इमरान अपने कोने पर बैठा काहेली से पिंग पोंग की जाली को खोलता और लपेटता रहा। कभी कभी वो सहमी हुई नजर नजमी पर भी डाल लेता, जो एक बड़े से सर वाली, दुबली पतली और सीधे साधे कदरे हमवार जिस्म की लड़की थी। वो ऐसे लोगों में से थी जिनकी सेहत का अंदाजा लगाने में हमेशा मुश्किल पेश आती है, जो हर रोज मिजाज के मुताबिक रंग बदलते रहते हैं। उसका कद छोटा था, मगर जिस्म के तंग चौखटे की वजह से पस्त कद न लगती थी। उसके चेहरे पर कोई खुसूसी जाज़बियत न थी, सिर्फ उसके निस्बतन बड़े साइज के सर ने उसमें मुस्तकिल कम उम्री की दिलकशी पैदा कर दी थी। और फिर उसकी आंखें थी, सियाह और माए, और बड़ी बड़ी और गहरी और बेहद रोशन। उसकी सारी शख्सियत में सिर्फ आंखें थीं जो देखने वाले को मुतासिर और मबहूत करती थी। नाजुक जिस्म और फीके चेहरे पर वो इस कदर ज़हीन और जानदार आंखें थीं, और उसके बाल थे जो सीधे और सियाह थे और उसकी आंखों से मेल खाते थे। उसकी गैर मामूली हसास तबीयत ने उसे घर भर के लिए दर्द सर बना रखा था। उस वक्त वो बरामदे में बैठी जल्द जल्द आंखें झपकती हुई दूर दूर तक गिरती हुई बारिश को देख रही थी। बादलों के नीचे आने से दिन की रोशनी घटती जा रही थी। हेलो मास्टर डल। खामोश बैठे बैठे उसने दोबारा मुड़कर शगुफ्तगी से कहा। हेलो। इमरान ने रुखाई से जवाब दिया। वो फिर अपनी मखसूस बेख्याली में जा चुकी थी। उसकी यह ऊट पटांग जहनी गैर हाजिरी इमरान को परेशान कर देती थी। फिर वो टांगे ऊपर समेट कर बैठ गई। मैं बारिश देखने के लिए आई हूँ। बारिश इतनी दूर दूर तक हो रही है, ऐसा अजीब लगता है। लड़के ने इस बात में सर हिलाया। मास्टर, ये बारिश जो है, ये तुमको बेजार करती है कि तुमको अच्छी लगती है? बताओ मुझे। वो तेज तेज जाली लपेटने लगा। बेजार नहीं करती। अच्छा, नजमी ने आंखें फैलाकर कहा। फिर दोनों हाथों की मुट्ठियां कानों पर रखकर दबाईं। ओह खुदाया, पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं चलता, बस ऐसा अजीब सा लगता है। हाउ सिली। थोड़ी देर के बाद उसने दोनों हाथ गोद में रख लिए और आंखें खोलकर धीरे धीरे कहने लगी। ये मुझे बेजार भी करती है और मैं इसको देखने के लिए भी आई हूँ, पता नहीं क्यों। लेकिन इमरान ने महसूस किया कि वो वहां पर न थी। वो उसे देख भी न रही थी। वो उस पर नजरें जमाए कुछ भी नहीं देख रही थी। बारिश का शोर बढ़ गया और बेलों में भीगती हुई चिड़ियां घबराकर उड़ने लगी। बारिश तेज हो गई है, इमरान ने अहम लहजे में इत्तला दी। वो चौंक पड़ी। बारिश की आवाज को तुम सुन रहे हो? लड़के ने गूमगू की हालत में सर हिलाया। ओह स्वीट। नजमी ने मुट्ठियां हवा में चलाईं। एमी डियर, ये इस कदर बस बिल्कुल बेहोश कर देने वाली आवाज है। बारिश की ना? उसने पूछा। हाँ, जैसे म्यूजिक रात के वक्त में एकदम बज उठे।
मुकम्मल म्यूजिक, ऑर्केस्ट्रा या रक्स की ताल जैसे एकदम तेज हो जाए, घुंघरू या फिर अरे नहीं भाई। उसने हाथ झटक कर गोद में रख लिया और खला में देखने लगी। लड़के ने इत्मीनान का सांस लिया और जाली मेज पर रखकर उकड़ू बैठ गया। वो फिर बोल उठी, अरे हाँ, जैसे म्यूजिक बजते बजते एकदम थम जाए या नाचते नाचते कोई एकदम रुक जाए, एकदम। तो फिर जो शोर पैदा होता है, कानों में तेजी, बिल्कुल बेहोश कर देने वाला पैदा होता है ना सारे में, तुम्हें पता है? यानी घुंघरू जब एकदम थम जाए तो उसके बाद। उसने आंखें फैलाकर समझाने की कोशिश की। दीवार के साथ बैठे हुए लड़के ने फिर इस बात में सर हिलाया। हाय स्वीट एमी डियर, म्यूजिक क्लास में इतनी दफा मैंने महसूस किया और आज अभी इस वक्त मुझे याद आया है कि ये बिल्कुल वैसा है। पर मास्टर, ये कहाँ से आता है बताओ? ये बारिश तो तुम्हें पता है कहाँ गिरती है? रास्तों पर, छतों पर, दरख्तों पर, पत्तों पर। उसने हाथ फैलाया, सारी बेआवाज जगहों पर। फिर ये म्यूजिक कहाँ से आता है बताओ? लड़का अपनी जगह पर कसमसाकर खामोश रहा। तुमने सुना है तो जरूर पता होगा, एमी बताओ ना। वो आधी बेजार नजरों से बैठा उसे देखता रहा। अचानक नजमी ने कानों को दोनों हाथों में ढांप लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें कुछ पता नहीं, वो चीखी, कुछ भी नहीं। डल, डल मास्टर। वो फिर पलटकर बैठ गई। बारिश का शोर आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया और बादलों के उठ जाने से उजाला बढ़ने लगा। जब वो बैठी बैठी उकता गई तो मेज से उतरकर बरामदे की सीढ़ियों तक गई और बारिश में हाथ फैलाकर खड़ी रही। बारिश बदस्तूर कभी तेजी कभी आहिस्तगी से होती रही। बरामदे के कोने से एक मेहरी घाघरा उठाए तेज तेज चलती हुई नमूदार हुई और पास आकर चाय के लिए बोली। हम यहीं पर चाय पियेंगे, इमरान ने कहा। हाँ, हम यहीं पर चाय पियेंगे, नजमी ने खुशी से कहा। आज लैला बड़ा उम्दा नाची थी, इमरान ने कहा। ओह वंडरफुल एमी, उससे अच्छी राधा तो वो ड्रामे में भी नहीं बनी थी। वो खिसक कर उसके करीब हो बैठी। और उसकी बहन ने मास्क क्या शानदार बनाए थे। अरे कुछ भी पता नहीं चलता, अल्लाह, वो सेंट जेवियर्स में है। तुमने मेरे घोड़े की टांग तोड़ दी। इमरान ने मुंह लटकाकर नीचे देखा जहां उसका 3 टांगों वाला घोड़ा औंधा पड़ा बारिश में भीग रहा था। मुझे इतना अफसोस है एमी डियर, पर मैं क्या करती? तुम खुद ही मेरे ऊपर चढ़ाए थे। रेस में कोई घोड़ा अपनी लेन भी छोड़ता है? मेरे घोड़े ने 2 लत्ती लगाई, तुम्हारे घोड़े की टांग टूट गई। घोड़े ने लगाई या तुमने लगाई? लड़का जलकर बोला। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, लेकिन मुझे अफसोस है एमी, हम ऐसे अजीजुल अजीज तरीन दोस्त हैं आपस में, नहीं? दोनों एक साथ हंस पड़े। आमने सामने बैठे मेज की हमवार चमकदार सतह पर चाय के कतरे टपकाते हुए वो खुशी से दिन भर की बातें करते रहे। फरहत क्यों नहीं आई? इमरान ने पूछा। उसे इन्फ्लुएंजा हो गया है, रियाज ने हमें बताया। उसे देखने हम कल सुबह जा रहे हैं। हाँ, कल सुबह। पिछली बार जो हमने मुबारकबाद का गीत गाया था, ये तुम्हारी इंग्लिश टीचर ग्रेगसन मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगती। अरे आहिस्ता बोलो भाई, नजमी ने होठों पर उंगली रखकर कहा। अजरा आपा की बड़ी पक्की दोस्त है, लेकिन एमी, ये जरा अच्छी बात नहीं। तुम्हें उससे बात तो करनी चाहिए, कम से कम वो इतनी स्वीट है। अच्छा, तो इसीलिए मुबारकबाद के गीत में तुम बिल्ले की तरह मुंह फुलाकर बैठे रहे। पप्पा भी कहते थे वो स्वीट है। वो फूले हुए मुंह से बोला। वो तो भाई, नजमी ने सटपटाकर कहा, गीत नूरी ने भी अच्छा गाया था। तुम उसके साथ लड़ी क्यों थी? अरे नहीं, बात कर रही थी। अरे वाह, तुम तो गरज गरज कर बहस कर रही थी। मैंने पूछा था आंखें बंद करके झूला झूलने से जो तारे नजर आते हैं उनका रंग कैसा होता है। वो कह रही थी कि उसको नहीं नजर आते, उसे ख्वाब में नजर आते होंगे। इमरान हंसा। अरे हाय एमी, कल मैंने ख्वाब देखा। वो उस पर नजरें जमाए जमाए बेख्याली में चली गई और रुक रुक कर बोलने लगी। ख्वाब देखा कि जंगल है और मैं घोड़े पर सवार जा रही हूँ और जंगल गहरा होता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है। फिर घोड़ा भाग गया है। फिर घोड़ा मुझे गिराकर कहीं भाग गया। मैंने उठकर उसे आवाजें दी, पोनी पोनी डियर, पोनी पोनी। हत्ता के डर के मारे मेरी आवाज बैठ गई और पोनी ने कोई जवाब न दिया। फिर मैं चलने लगी, बीच रास्ते से हटकर, किनारे किनारे, दरख्तों के नीचे नीचे। मेरे ऊपर कोहरे से मरे हुए दरख्त थे और जब कोई पत्ता मेरे बालों पर गिरता तो मैं चौंक पड़ती। फिर पत्तों की बारिश होने लगी हर तरफ और देखते देखते रास्ता पत्तों में गायब हो गया। मैं भागने लगी, बहुत तेज। पत्ते जर्द और खुश्क थे और मेरे पाँव के नीचे उनके टूटने की आवाज आ रही थी। मैं भागती गई और घोड़े के मिलने की दुआएं मांगती रही कि एक खुली जगह आ गई। ये एक झील थी जो खुश्क हो चुकी थी। तह में थोड़ा सा पानी था
जिस पर कोहरा जमा हुआ था। वहां पर कोई भी न था सिवाय एक परिंदे के, जो झील के किनारे एक टांग पर खड़ा था। मैंने डरते डरते उसके करीब जाकर कुछ पूछा। उस नन्हे से आबी परिंदे ने सर उठाकर मुझे देखा और मुंह खोलकर कहकहा लगाया। इमरान खिलखिलाकर हंसा। वो उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर बोलती रही। फिर उसने सर से मुझे आगे जाने का इशारा किया। मैंने देखा आगे पहाड़ियां थीं जिन पर बर्फ गिर रही थी या गिर चुकी थी याद नहीं रहा, लेकिन वो बर्फ पोश थी। मैं फिर भागने लगी। अब मैं खौफजदा न थी, मैं खुशी से भाग रही थी। खुशी से। बहुत खौफजदा न थी, मैं खुशी से भाग रही थी, बहुत तेज। वो ठिठक कर रुक गई। कैसा है ये कि बताओ। अच्छा है, इमरान ने खुशदिली से कहा। वो एकदम सुर्ख हो गई। क्यों है, उसने तकरीबन चीख कर कहा। क्यों? लड़के ने सहम कर दोहराया। पता नहीं, ख्वाबों का कोई मतलब नहीं होता। ओह! इंतहाई रंजीदा होकर वो उसकी तरफ से मुंह फेर कर बैठ गई। उसका घुटना लगने से प्याली औंधी हो गई और उसमें बची हुई चाय मेज पर फैल गई। आंसुओं को रोकने के लिए वो तेज तेज आंखें झपकने और पांव हिलाने लगी। कुछ देर बाद उसने पूछा, तुम ख्वाब नहीं देखते? नहीं, कभी कभी। क्या? क्या? लड़के ने दोहराया। कुछ नहीं, यही कि जैसे आज देखूं कि हमने बरामदे में चाय पी। वो कानों तक सुर्ख हो गई। इमरान ने जाली उठाई और उसे खोलने और लपेटने लगा। बेहद गीली हवा उनके चेहरों से टकरा रही थी। बेल पर से बारिश के कतरे सीढ़ियों पर गिर रहे थे। अब शाम पड़ रही थी। तुमने अपना काम खत्म कर लिया? देर के बाद नजमी ने मुड़कर पूछा। क्या? नजमी ने बरामदे के फर्श की तरफ देखा। इमरान झुंझला कर उठा और उसके सामने से गुजर कर बिखरी हुई चीजें समेटने लगा। लकड़ी के घोड़े, मास्क, रेलगाड़ी, बमा लाइन, क्रैकर, कागज की टोपियां, गुब्बारे और इसी तरह का कितना ही अल्लम गल्लम। वो रंजीदा नजरों से बैठी देखती रही। बाकी तुम उठाओगी। आधी चीजों का ढेर लगाते हुए वो फूले हुए मुंह से बोला। ये मेरा काम नहीं, मुझे नहीं पता। मैं खाला से कहूंगी कि तुमने अपना काम नहीं किया। मैं भी कहूंगा। क्या? कि तुमने फिर मेज पर चाय गिराई है। उसने दोनों बाजुओं में चीजें भरते हुए कहा। तुम मेरी शिकायत करोगे? वो रंज से चीखी। लड़के ने बेजारी से उसकी तरफ देखा और चीजें संभाल कर चल पड़ा। मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता, उसने कहा। वो उसे बरामदे में गायब होते देखती रही, फिर कूद कर उतरी और पांचे उठाकर बरामदों में भागने लगी। अजरा के कमरे में रोशनी न जली थी। वो अभी अभी सोकर उठी थी और पलंग पर खामोश बैठी थी। नजमी ने कालीन पर गिरकर उसकी गोद में मुंह छुपा लिया। अजरा आपा, वो सिसक कर बोली। मैं इसके साथ नहीं रह सकती। क्या है बीबी, किसके साथ? अजरा ने तशवीश से पूछा। मास्टर डल। तो कौन कहता है आप उसके साथ रहें बेटा? क्या कहता है? वो कहता है कि ख्वाब में वो चाय पीता है। और अजरा हंसी। तो ठीक है, आप अलग रहें, वो अलग रहेगा। नजमी ने उसकी गोद में से मुंह उठाया और गुस्से से बोली। डल मास्टर। डल मास्टर नहीं कहते बिटिया, इमरान कहते हैं। वो आपसे बड़ा है। अजरा ने उसके बाल संवारे, आंखें खुश्क की और झुककर उसकी पेशानी को चूमा। अच्छा, अब आप जाकर जूते पहने। वो बारिश आलूद दिन खत्म हो रहा था और अजरा अकेली दरीचे में खड़ी दूर तक गिरती हुई बारिश और झिलमिलाती हुई रोशनियों को देख रही थी। ये रात के साथ मखसूस है, उसने बरकी रोशनियों को देखकर सोचा। भूरे रंग की घनी लट उसके माथे पर फड़फड़ाए जा रही थी। उसने काहेली से उसे बालों में उड़सा और दोबारा उसके गिरने का इंतजार करने लगी। ये रात के साथ जलती हैं, उसने दोबारा सोचा। लेकिन ये कोई सोच न थी। ये उन छोटे छोटे बेकार ख्यालों में से एक था जो खाली उस जहन इंसान के दिमाग में आप से आप चले आते हैं। वो अपनी काहिली और बेख्याली पर झुंझला गई, लेकिन वो अकेली थी और अंधेरा उसके चारों तरफ फैल चुका था और बारिश सुबह से हो रही थी, दूर दूर झिलमिलाती हुई रोशनियों पर और उससे परे अंधेरे खेतों और मैदानों और दरख्तों पर लगातार। जब ये नहीं थी, बारिश जब भी हो रही थी, उसने फिर सोचा और दिल में ख्याल की नारसाई और बेतुकेपन पर झुंझलाई। मुसलसल बारिश ने उसके हवास को कुंद कर दिया था और वो बेजार हो चुकी थी। नमदार हवा उसके सर्द बेजान चेहरे से टकरा रही थी और स्टूल पर पांव लटकाए दरीचे के पत्थर पर दोनों कोहनियां रख कर बैठी वो इतनी बेहिस और काहिल हो गई थी कि उठ भी न सकती थी। उसने गीले मुंजमद चेहरे को छूना चाहा, मगर हाथ उठाने का इरादा न कर सकी। फिर उसने ऊपर का होंठ फैलाकर सांस को महसूस किया। सांस गर्म था और वो खुश हुई। उस बेनाम खुशी और मसनूई तमानियत के साथ बैठी
वो लट के गिरने का इंतजार करने लगी जो लापरवाही से बालों में उलझाई गई थी। छोटे छोटे बेकार लायानी ख्याल आप से आप आते और जाते रहे। अंधेरे में उसका वजूद और एहसास दोनों मादूम हो गए। सारे वक्त बारिश हो रही है, उसने दिल में कहा। रात की मखसूस धीमी और मुसलसल बारिश सारे ही वक्त हो रही थी। दरीचे के छज्जे पर, यूकलिप्टस के पत्तों पर, नीचे बाग के रास्तों पर त्रिप 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 उसकी खामोश आवाजों की मौसीकी सारे में फैली हुई थी। एक एक करके बंद होते हुए दरीचों पर, बुझते हुए शीशों पर, एक एक करके सोते हुए मर्दों औरतों के कानों पर बज रही थी। रात का समय जो भारी और महफूज समय था, जानदारों के लिए आराम का समय था, लेकिन हवा जो दिन भर से गीली और मुस्तरिब थी चले जा रही थी। बिलाखिर ये रात गैर आबाद न थी। बंद दरीचों के बाहर होती हुई बारिश ख्वाब आलूद और पुरस्रार थी। बारिश सारे वक्त होगी, उसने दिल में दोहराया। लट अभी तक न गिरी थी और वो झुंझला रही थी। जहन की नारसाई और इंतजार की कोफ्त पर उसने दोबारा होंठ फैलाकर सूंघा। सिर्फ एक सांस था जिसे वो महसूस कर रही थी, गर्म और जारी इंसानी सांस। बाकी सब चीजों को, बारिश को और चेहरे की गीली हैजान जिल्द को और खुशबूदार दरख्त के पत्तों को और अंधेरे में बाजुओं की मध्यम लकीरों को और दूर दूर झिलमिलाती हुई गीली और इकलौती रोशनियों को उसने फर्ज कर लिया था। फिर उसने सपाट लहजे में दिल में कहा। सड़क के पार दूसरे मकान के शीशों पर रोशनी गुल हो गई। किसी ने दरीचा खोलकर खामोशी से बाहर झांका। कोई सोने की तैयारी कर रहा था। यह भी उसने फर्ज कर लिया कि सभी लोग तो सोते हैं। फिर उसने बेजारी से दिल में दोहराया। बरामदे में किसी नौकर के गुजरने की चाप सुनाई दी। बिटिया सो रही हैं, उन्होंने एक दूसरे से कहा और गुजर गए। बाग की बाड़ के पीछे एक बैलगाड़ी भीगती हुई गुजर रही थी। उसके नीचे लालटेन लटक रही थी और गीली सड़क पर उसका धुंधला अक्स दूर तक चला गया था। फूस की छत के नीचे बैठे हुए चंद किसान मोटी उदास आवाजों में बातें कर रहे थे और बैलों को चला रहे थे। लेकिन उस दूसरे मकान के शीशों पर रोशनी गुल हो गई थी और उनके पीछे रात का अव्वलीन बोसा लिया जा रहा था, या शायद लिया जा चुका था, क्योंकि वो दो थे और जब कमरा अभी रोशन था तो उनके साए शीशों पर लरज रहे थे और वो एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखे बातें कर रहे थे, बेआवाज बातें जिनको सिर्फ वही जानते थे। फिर जब मर्द ने सिगरेट दरीचे में मसला और रोशनी गुल कर दी तो किसी ने पल की पल को दरीचा खोलकर बाहर झांका। किसी ने एक मुख्तसर सा कहकहा लगाया और दरीचा बंद कर दिया और अब कमरा गर्म और तारीक था और बाहर बारिश हो रही थी और सड़क पर रात के इक्का दुक्का मुसाफिर भीगते हुए गुजर रहे थे और अब कमरा गर्म और तारीक था। लाहौल बिला कुव्वत, उसने पहली दफा शऊरी तौर पर सोचा और स्टूल से उतर आई। कमरा पार करके उसने बत्ती जलाना चाही, लेकिन दीवार पर हाथ रखे खड़ी रही। एक बहुत पुराना खौफ था जिसने उसे बाज रखा, लम्हों के बहाव को, वक्त के तिलिस्म को तोड़ देने का खौफ। और लम्हों के बहाव में एक दिन और गुजर गया, एक साल और। अभी जब दिन रुखसत नहीं हुआ था तो बहुत से बच्चे किसी की सालगिरह मना रहे थे। बारिश की वजह से वो महल के पिछवाड़े घास पर न जा सके थे और बरामदों में उधम मचाते फिर रहे थे और चिल्ला चिल्ला कर गा रहे थे और घुड़ दौड़ के मुकाबले मुनकिद कर रहे थे। पिछवाड़े की तरफ सब्जे पर क्या उम्दा पार्टियां हुआ करती थी। अल्लाह, क्या यादगार जमाना था। वो लोग अब कहाँ गए? वो लोग आहिस्ता बरगे गुल वफिशा बर मज़ारे माँ। कोई बेहद दिलकश अंदाज में झुककर कह रहा है, अरे ये तो एक बहुत पुराना, बहुत भूला हुआ मंजर है। हश्त और घुड़ दौड़ के मुकाबले हो रहे हैं। कोई रेस के दौरान बैठकर अपने घोड़े की टूटी हुई टांग जोड़ रहा है। कोई जब पीछे रह जाता है तो घोड़े को बगल में दबाकर भाग उठता है। फिर वो अपनी हमजोली को तंग करने लगे कि वो उन्हें अपनी सालगिरह की नज्म सुनाए। अरे ये तो नजमी है, ये प्यारी सी अजीबो गरीब लड़की जो नज्म सुना रही है। फिर राधा नाची और मास्क डांस हुआ। फरहत की सेहत के मुतालिक कोई ताजा बुलेटिन शाये हुआ? वो रियाज से पूछ रहे हैं। सेंट जोन्स की कैबिनेट में केक चुराने का पोर्टफोलियो रियाज के पास है। वो रियाज को तंग कर रहे हैं। रियाज जो गोल मटोल सीधा साधा लड़का है। ग्रैक्सन उन्हें सख्ती से मना कर रही है। ग्रैक्सन जो मिशन में चली गई है। ओह शरीफ खातून, तो गोया आप राहिबा बन गई। अब केक पर मोमबत्तियां जल रही हैं और सब मिलकर मुबारकबाद का गीत गा रहे हैं। ग्रैक्सन जिसे लीड कर रही है।
14वां साल जो खत्म हुआ, उसके बाद 15वां आएगा और फिर 16वां, और फिर हम गाएंगे पिछला साल जो खत्म हुआ, 14वां साल जो। सालगिरह का यह अनोखा गीत एलिस ग्रेगसन के वतन आयरलैंड का है। एलिस जो एक बहुत पुरानी बहुत प्यारी साथी है, लेकिन अब वो कुछ नहीं बताती, बात भी नहीं करती। अब वो इस कदर कमीनेपन पर उतर आई है कि मिलती भी है तो अजनबियों की तरह, बस बच्चों में मगन रहती है और बालों को सफेद रुमाल में कसकर बांधती है, और हर रोज गिरजा के पियानो पर बैठकर गाती है और अपनी आवाज में डूब जाना चाहती है। धोखेबाज लड़की, तूने दिल का चैन पा लिया है? मैं उससे पूछना चाहती हूँ। हेलो अजरा, वो अपने कमीनेपन के सर्द ना आशना लहजे में कहती है। मेरे हलक में कुछ अटक जाता है, जैसे मैंने कभी उसे उबली के नाम से पुकारा था, जैसे कभी उसने रोशन महल के तोशा खाने के फर्श पर बैठकर पकवान तैयार नहीं किए, जैसे कभी उसने फव्वारे पर पीपल की जड़ पर बाग के कोने कोने में बैठकर पहरों अरशद से बातें नहीं की। क्या हमने कभी सोचा था? मैं पूछना चाहती हूँ। ये सब जो बीता, खुदाया, वो कुछ भी नहीं बताती, इसके बावजूद वो इस कदर अजीज दोस्त है। दिन रुखसत हो गया और रोशन महल में लोग अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। रात का खाना कब का खत्म हो चुका। अब वो दरमियानी कमरे में बैठे कहवा पी रहे होंगे या पी चुके होंगे, और उसे कोई बुलाने नहीं आया। उसे कोई बुलाने नहीं आएगा कि ये उसका हुक्म है। लम्हों के बहाव को मैं रोक सकती हूँ? अंधेरे में आंखें फाड़ कर देखते हुए उसने सवाल किया। बारिश थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। वो बिजली के बटन पर से हाथ उठाकर बाहर निकल आई। नीम रोशन गैलरियां तवील और खाली थी। रोशन आगा के सिवा अब सबके रिहायशी कमरे दूसरी मंजिल पर थे। ऊंचे तंग मेहराबी दरवाजे बंद थे और मुनक्कश शीशों पर रोशनियां जल रही थीं, रोशनियां बुझ रही थीं। यह मम्मी का कमरा है, जिसमें अभी अभी रोशनी गुल की गई है। मेरी माँ, जिसका मेरी जिंदगी से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। बस जैसे ये बंद कमरा है और मैं उसके आगे से गुजर रही हूँ, और मम्मी अंदर अकेली रह रही हैं, तन्हा और महफूज, बेहद शानो शौकत के साथ। लेकिन मैं अजरा हूँ मम्मी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? खुदारा बतलाइए। गैलरी खामोश और अंधेरी है और मैं अकेली यहाँ से गुजर जाती हूँ। ये नजमी का कमरा है, मेरी प्यारी बहन, जिसको इस घर में सिर्फ मैं समझती हूँ, इसीलिए उससे मोहब्बत करती हूँ। वो आहिस्ता से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। नजमी कंबलों में लिपटी दीवार से टेक लगाए बिस्तर पर बैठी थी। अजरा आपा, रोशन आगा खाने पर आपको पूछ रहे थे। मुझे वो नज्म सुनाओ, उसने बिस्तर पर बैठते हुए कहा, जो आज सबको सुना रही थी। एक शहजादा और उसका दोस्त मेंढा अजरा आपा, उसने आंखें झपकते हुए पूछा। नहीं भाई, अकेला शहजादा। नहीं अजरा आपा, उसका दोस्त मेंढा भी। नजमी ने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखकर समझाने की कोशिश की। अरे नहीं भाई, अजरा ने सटपटा कर कहा, अकेले शहजादे की नज्म सुनाओ। अकेला? वो आंखें झपकने लगी। अच्छा, कल सुनेंगे। वो उठ खड़ी हुई। उसने नजमी को लिटाया, कुशन ठीक किए और झुककर उसकी पेशानी को चूमा। शब बखैर बीबी, अब आप सो जाओ। बत्ती बुझाकर वो बाहर निकल आई। गैलरी उसी तरह तवील और खाली थी। दूसरे सिरे पर एक मेहरी ने साए की तरह लपक कर गैलरी पार की और जीने पर गायब हो गई। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। ये परवेज का कमरा है और उसकी बीवी का, उस दूसरी अजनबी औरत का जो मुझे नहीं जानती। बस जैसे हम रोशन महल में सो रहे हैं और सड़क पर से कोई मुसाफिर भीगता हुआ गुजर जाए, लेकिन फिर भी ये उसका कमरा है और उसमें उसका सामान रखा है, जिस पर गर्द जम रही है और जिसे उसकी इजाजत के बगैर कोई नहीं खोल सकता। और परवेज, मेरा भाई, जो मेरा दोस्त भी था, उसके साथ चलता हुआ दूर निकल गया है और मैं वहीं पर आ गई हूँ जहां से चली थी। काश मेरा भाई मुझसे, मेरी दुनिया से सुलह करने पर आमादा हो सकता। काश, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करती, क्योंकि अब मैं अपने कमरे के सामने आ गई हूँ। बिलाखिर ये मेरा कमरा है। इस जगह मैं बचपन से रहती आई हूँ। यहाँ मैंने कैसे कैसे ख्वाब देखे हैं। मुझे इस कमरे से नफरत है। इसके दरीचे के शीशों पर यूकेलिप्टस के पत्तों का अक्स पड़ता है, जो मुझे नापसंद है। बारिश जब तेज हो जाती है तो बेपनाह शोर अंदर आता है, क्योंकि ये गैलरी के इख्तिताम पर है। ये भी मुझे नापसंद है। इस कमरे में मैंने क्या क्या सोचा है, कैसे कैसे प्रोग्राम बनाए हैं। इन 30 सालों में मुझे याद है कितने ही मुसर्रत के, कितने ही दुख के लम्हे गुजरे हैं। इस लम्हों के बहाव को मैं कभी भूल सकती हूँ? और इस कमरे को, जिसकी कार्निस पर कितने ही फूल सूख गए और कितने ही ताजा फूल उनकी जगह रखे गए, फूल जो सिर्फ मेरी खातिर, इस कमरे की खातिर उगाए गए, और कितने ही। अरे ये खामोशी क्यों एकदम हो गई?
सारे में मेरे साजों पर मिट्टी जम रही है और बरामदों में इतनी वीरानी सिमट आई है। मैं उनको यहाँ लाकर रखूंगी ताकि वो दहल जाएं और ये खामोशी टूट जाए। उसने सारे साजों के गिलाफ उतारे और एक एक करके उन्हें बाहर ले आई। तवील अंधेरी गैलरी में थोड़े थोड़े फासले पर तानपूरा, सितार, वायलिन, तबला, हारमोनियम, कोई एक दीवार के साथ, कोई दूसरी दीवार के साथ, कोई दरवाजे के पास, कोई रेलिंग के साथ। फिर देर तक वो उनके दरमियान फिरती और एहतियात से उन पर उंगलियां धरती रही। उन्हें खामोश और बेअसर पाकर उसे खुशी हुई। अंधेरे में भद्दी सियाह शक्लें वो दीवार के साये में सोए हुए फकीरों की तरह दिखाई दे रहे थे। जब वो बहुत थक गई तो जाकर लिखने की मेज पर बैठ गई। अब अब मैं खत लिखूंगी। लैंप जलाते हुए उसने फैसला किया। किसको क्या फर्क पड़ता है। सर को हल्का सा झटका देकर उसने लिखना शुरू किया। प्यारी शीरी, सुबह से बारिश हो रही है। तबीयत सख्त ऊब गई है। आज नजमी की सालगिरह थी। तुम्हें सबने बहुत याद किया। मैंने, नजमी ने, सबने। एलिस भी आई थी, लेकिन वो किसी को याद नहीं करती। वो मुझे भी कुछ नहीं बताती। भला बताओ किस कदर मस्खरेपन की बात है। इसमें किसी का क्या कसूर था। पर शीरी, वो तो अंग्रेज लड़की है। कहते हैं यूरोपीय अक़वाम समझदार रहती हैं इस मामले में, और फिर मौत पर किसी का क्या बस। अल्लाह। शीरी, आज मैंने शाम के समय को अपने इर्द गिर्द फैलते हुए देखा, महसूस किया। तुमने कभी किया है? जब जरा जरा बारिश हो रही हो और शाम हर तरफ धुआंधार हो और नीली हो और बढ़ती जाए, तो तुमने कभी महसूस किया है? अरे ये ऐसी खूबसूरत शय है शीरी, नर्म और खूबसूरत। अव्वली बोसा या अव्वली सरगोशी, या अरे मैं कैसे बताऊं भाई। और कॉरिडोर, तवील और खाली कॉरिडोर जिंदगी से इस कदर करीब हैं। आज मैं उनमें इस तरह फिरती रही जैसे कि वो मेरे बेहतरीन दोस्तों में से थे। एक गैलरी में मुझे चंद साज पड़े हुए मिले जो सब के सब खामोश थे। एक सितार अभी तक रेलिंग पर झुका हुआ है। जब उस पर बारिश पड़ेगी तो वो ट्यून होगा, मैं सोचती हूँ। आज इमरान बेहद उदास था। परवेज अभी तक नहीं आया। मेरे ख्याल में बच्चों को वालिदैन के पास रहना चाहिए। नजमी आज सारा दिन नंगे पांव बारिश में भीगती रही। मुझे डर है उसे जुकाम न हो जाए। तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? मुन्नू और गुड्डू? हामिद भाई की सेहत कैसी है? शीरी, हम इस कदर तेजी से बूढ़े होते जा रहे हैं, हम और तुम और सब। एक बात बताओ शीरी, मोहब्बत क्या इतना ही दुख देती है? क्या इंसानों की यही खता है कि वो मोहब्बत करते हैं? आखिरी सतरें घसीट कर वो कुर्सी की पुश्त पर गिर गई। ये फरखुंदा के गीले पांव के निशान हैं जो कालीन पर पड़ गए हैं। वो हथेली पर थोड़ी रखकर बैठी देखती रही। बाहर बारिश तेजी से हो रही थी।